Hello children, welcome back to your own channel where we are talking about the topic straight lines. I hope and believe you have gone through the lecture 1 and lecture 2 of this chapter. Let me just quickly summarize it. In the lecture 1, we have discussed how to find the slope of the line, the angle between the two lines, what is the relation between the slopes when the lines are perpendicular and the lines are parallel. So that was the first part, right? In the second lesson, we started how to find the equation of the line. Now, जब आपने लेसन 1 कर दिया, लेसन 2 कर दिया, नाउ कम्स द फंडामेंटल एंड द थर्ड मेजर लेसन की अब देखो क्या हो रहा है. पहले स्लोप निकाली, वहां से हमने इक्वेशन निकाली. अब थर्ड लेक्चर में हमारे पास इक्वेशन है और हम स्लोप निकाल रहे हैं और द अदर थिंग्स दैट हैव बीन आस्क्ड फॉर. Yeah, so continuing with my previous statement, in this third lesson we'll be finding how to find the given information given now that you have the slope of the equation of the line. Yeah, okay. So moving further, so suppose the equation of the line that has been given to you is ax plus by plus c equals to 0. Now that is normally you know that is the standard equation, the linear equation. So for example, I take it to be 5x plus 4y equals to 20. This is the equation that have been given. Yes. Now if the question asks me find the slope, find the y-intercept and find the x-intercept, तो कैसे निकलेगा ध्यान से समझिए. ठीक है. सपोज करो ओके, टू फाइंड द स्लोप, ये ध्यान रखना, अगर मुझे स्लोप और y-intercept निकालना है ना, आई नीड टू रिड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ y is equal to mx plus c. The slope intercept form, where the intercept was the y-intercept, the slope is the normal x का coefficient. अगर आपको y-intercept और x-intercept निकालना है दोनों, you need to reduce it in the form of x upon a plus y upon b equal to 1. क्या समझे? x और y-intercept तो intercept form, y-intercept and the slope तो slope intercept form. Yes. Okay, so now coming back to the same equation, 5x plus 4y equals to 20. You have been given this equation and now you have been asked to find all the three variables, right? So what I will do is 4y equals to minus 5x plus 20. Yeah, y is equal to mx plus c की form में. So y is equal to minus 5 upon 4x plus 5. 20 upon 4 is 5. Yes. Does it resemble this form? तो अब c की वैल्यू क्या हो गई 5 and m की वैल्यू क्या हो गई minus 5 by 4. So with this you can get that your m is equal to minus 5 by 4. However your c, अब ये c क्या है y intercept और y पे कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होंगे, x आपका 0 होगा, so it's 0,5. I hope it is clear. चलिए, अब अगर सेम इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आपको x और y इंटरसेप्ट्स दोनों बतानी है, तो मैंने आपको क्या बोला, विच फॉर्म विल यूज इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1. हाउ वुड यू सॉल्व इट? सो यू हैव 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, राइट? नाउ इन दिस इंटरसेप्ट फॉर्म से आपके RHS राइट हैंड साइड पे क्या है 1, सो आप राइट हैंड साइड को 1 की टर्म्स में ले आइए. सो व्हाट डू आई डू? I divide this entire equation by 20. Do I get x upon 4 plus y upon 5 equals to 1? Yes. So this x intercept is 4, 0 and the y intercept is 0, 5. And check karo, this is the same y intercept that we had when we used the slope intercept form. I hope it is clear. Yeah. Chalo, moving further, let me give you any other random line and I might ask you to find the same information again. So suppose karo I give you 10x plus 3y equals to 7. स्लोप निकालते हैं, जल्दी से निकलेगी. अब देखिए 3y equals to minus 10x plus 7. So y is equal to minus 10 upon 3x plus 7 upon 3. So the y intercept becomes 0,7 by 3 and the slope becomes minus 10 by 3. That's that quick. Yeah. Chaliye. X intercept and y intercepts. So what do I have? 10x plus 3y equals to 7. हमने क्या किया, हम राइट हैंड साइड वाली साइड को
1 बना देंगे. So what do? We divide the entire equation by 7. So what do you have? X 7 upon 10, है ना, नीचे लेके जा सकती हो ना, प्लस y अपॉन 7 by 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि y इंटरसेप्ट आ गया 0,7/3. चेक करो, इट इज द सेम, है ना, एंड द x इंटरसेप्ट इज 7 upon 10, 0. ये मैंने पर्टिकुलरली ऐसे टेढ़ा मेढ़ा एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि जब फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है ना, सो बच्चे बहुत गलत करते हैं, वो 10 upon 7 x इंटरसेप्ट लिख देते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू. आप 10 को नीचे लेके जाते हो, सो इट्स 7 upon 10. ठीक है, तो ये गलती मत करना, बस. क्लियर है? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. नाउ सी, इफ यू आर गिवन दिस लाइन, एनी लाइन पर से, so you have been given ax plus by plus c equals to 0 as a line, and this is the point x1 y1. You need to find the distance of a point from the line. अब मेरी एक छोटी सी बात समझो, जब हम गूगल मैप पे कोई किसी भी जगह की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन करते करते ना दिमाग में इक्वेशन ही घूमती है. सो अगर हम गूगल मैप पे किसी भी जगह की लोकेशन डालते हैं तो आपके पास क्या आता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसमें आपको सबसे कम टाइम लगे, सबसे कम ट्रैफिक जैम मिले, यही लोकेशन आती है ना. एक जगह पे जाने के तो कितने सारे रास्ते हो सकते हैं, घूम के कहीं पे भी जा सकते हैं ना, है ना. बट द गूगल मैप विल ऑलवेज गिव यू द एरिया विच विल गिव यू शॉर्टेस्ट टाइम पे आप वहाँ पे पहुँच सके विद द लीस्ट डिस्टर्बेंस, राइट. तो हम जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू अ लाइन बोल रहा है, दैट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और ये डिस्टेंस हमारा आता कैसे है? दिस d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन रूट a² प्लस b², ऐसे. ax1, अब मैं ना थोड़ा कलर यूज कर रही हूँ, देखो, ax1 by1 plus c equals to 0. Now I've always put this in the mod. क्यों mod? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. क्लियर? चलो, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. -3,5 का मुझे डिस्टेंस निकालना है टू दिस लाइन. कैसे निकलेगा? -3,5. अब मेरे पास लाइन क्या है? 3x minus 4y minus 26 equals to 0. हाँ, मुझे डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? इस पॉइंट से, 3, -5 से. आई होप इट्स कंप्लीटली विजिबल. हाँ, चलिए. सो द डिस्टेंस इज इक्वल टू a इज 3, x1 3 प्लस b -4, y1 -5 प्लस c -26 whole upon under root of a² 9 plus b² -4 का square 16. I hope I'm making clear. I'll again use this. a x1 b y1 plus c equals to 0. Yeah, clear? चलिए, इसको मैंने सॉल्व किया. व्हाट डू आई गेट? 9 plus 20 minus 26 upon root 25. Yeah, on solving this you'll get 29 minus 26, 3/5 as your distance. I hope I am clear. Yeah, चलिए, find the distance between the two parallel lines. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं. यस. सो अगर इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c1, तो इसकी इक्वेशन भी तो यही होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c2. अब यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैम यहाँ पे तो y इंटरसेप्ट है नहीं, तो आपने c कहाँ से लिया? है तो सही, अगर मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूँ तो ये मेरी y एक्सिस को कहीं तो काटेगा ना, दैट विल बी माई c. ठीक है. अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरे की हो जाएगी ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0. अगर आप y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लेके आएंगे तो देखो, इसकी भी स्लोप माइनस a/b आएगी और इसकी भी स्लोप माइनस a/b आएगी. चाहो तो आप चेक कर सकते हो.
ये मेरा क्यों पर्पस है आपको ये चीज़ बताने का, क्योंकि अगर मेरी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसका डिस्टेंस जब आप निकाल रहे हो तो ये ध्यान रखना कि दोनों की स्लोप्स भी इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपके पास इस फॉर्म में गिवन है तो आप m डायरेक्टली देख सकते हो। अगर आपके पास इस फॉर्म में गिवन नहीं है और नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो द बेटर है कि आप a बाई बी माइनस ए बाई बी माइनस ए बाई बी, मतलब आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में निकाल के चेक कर लो कि द स्लोप्स आर इक्वल, एंड इफ इन केस द स्लोप्स आर इक्वल विच मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर आपसे डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस पूछा जाए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये जो डिस्टेंस होता है ना ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये देखो, इसकी भी स्लोप देख लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करोगे माइनस 3/4 आएगी, नो इसकी स्लोप प्लस 3/4 आएगी, प्लस 3/4 आएगी, चेक कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो क्या डिस्टेंस हो जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन रूट 9 प्लस 16 विच विल बी 2/5, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन्स। आई होप इट इज़ कम्प्लीटली क्लियर, ठीक है। अब देखो भाई, मोटे मोटे हम तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट्स बता चुके हैं, हम तुम्हें स्लोप समझा चुके हैं, हम तुम्हें ये समझा चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे निकालते हैं, और अब हम आपको ये भी समझा चुके हैं कि गिवन द इक्वेशन ऑफ द लाइन हाउ डू यू फाइंड द स्लोप, द इंटरसेप्ट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट टू द लाइन। हम ये सारी अब चीज़ें बेसिक ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स अब आई होप आप सबको क्लियर हो चुका है। बस इतना ही समझना होता है स्ट्रेट लाइन्स में, इसके अलावा तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं। मैम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमें तंग करती है क्वेश्चंस में, है ना। चलिए लेट्स मेक इट वेरी इजी फॉर यू विथ सम क्वेश्चंस, एंड आई होप दीज क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम NCERT, सो आई होप देयर वोंट बी मच प्रॉब्लम डीलिंग विद देम, या। चलो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज 4 यूनिट्स। एक मेरा गूढ़ मंत्र हमेशा याद रखना, अगर लाइन की इक्वेशन फ्रैक्शन में गिवन है और तुम बीच में भटकना अटकना नहीं चाहते तो बेटर है कि उसको LCM लेके ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, कभी नहीं अटकोगे, ये मेरा प्रॉमिस ले लो, ठीक बात। चलो, तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, है ना। आई नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस जिसका डिस्टेंस इज 4। अब जो डिस्टेंस गिवन है मतलब द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इम्प्लाइड है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। आई नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, सो दैट विल बी a, 0 की फॉर्म में, या। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा 4a प्लस 3 इंटू 0 0 माइनस 12 होल अपॉन रूट 16 प्लस 9, या। सो दिस इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4a माइनस 12 अपॉन 5, ये चीज़ आई। अब देखो ये बेटा ये मॉड लगा हुआ है, तो अगर मुझे मॉड को हटाना है तो मुझे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों, बात को समझो। एक डिस्टेंस का एक पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस भी हो सकता है और ये वाला डिस्टेंस भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों ही है ना, ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकता है पॉइंट, दो पॉइंट आ सकते हैं ना। तो इस रीज़न से आई पुट ए नेगेटिव साइन एंड द पॉजिटिव साइन, तो दो आंसर आएंगे। एक हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 4a माइनस 12, सो a की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। एक हो जाएगा -4 इंटू -20 इज इक्वल टू 4a माइनस 12, सो -8 इज इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब 8,0 एंड -2,0, ये होंगे आपकी दो वैल्यूज। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन पासिंग थ्रू। अब अगर पैरेलल है तो स्लोप्स बराबर होंगी, हाँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, सो दिस लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ द लाइन पासिस थ्रू -2,3। आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच इज पैरेलल टू इट। अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी की अगर मैं फॉर्म में ले आऊँ 4y
y इज इक्वल टू 3/4 x प्लस 2/4, तो m की वैल्यू इसमें क्या आ गई 3/4। अब बेटा जी अगर इस लाइन की स्लोप 3/4 एंड इफ द लाइन्स आर पैरेलल, तो इस लाइन की स्लोप भी तो 3/4 होगी। याद करो मेरी सेकेंड लेक्चर सीरीज। स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, कौन सी फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। y minus 3 is equal to 3/4 of x plus 2. So this is 4y minus 12 equals to 3x plus 6, यानी कि 4y minus 3x is equal to 18, and that becomes the equation of the line. Yeah, perfect. चलिए, moving further to question number 3. Find the angle between the two lines. Angle between the two lines का बेटा फॉर्मूला क्या होता था? tan theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. And if you do not remember the formula, I also gave you the derivation in the previous lecture. Yeah, चलिए इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? y is equal to minus root 3x plus 1. सो देखो m1 की वैल्यू आ गई minus root 3. ठीक बात। इस लाइन को देखो, √3y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, सो आपके पास y की वैल्यू आ गई -1/√3x प्लस 1/√3, या सो m2 की वैल्यू आ गई -1/√3। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। अब आप इसमें अंदर वैल्यू डाल दो। tan थीटा इज इक्वल टू m2 क्या है -1/√3 माइनस प्लस √3/1 प्लस -1/√3 इंटू -√3, या सो ये क्या हो जाएगा आपके पास? tan थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 3/√3/2, सो 3 - 1 2, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/√3। ठीक बात। अब देखिए tan थीटा 1/√3, अब ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, सो देयर बी 2 केसेस। या तो tan थीटा आपका 1/√3 है, और अगर tan थीटा 1/√3 है तो मतलब थीटा आपका सीधा सीधा आ गया 30 डिग्री, या फिर tan थीटा आपके पास -1/√3 है, तो अगर आपके पास थीटा आ जाएगा 180 - 30 यानी कि 150 डिग्री। सो देयर विल बी 2 आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम। बिंगो, क्लियर? चलिए मूविंग फर्दर। Next question. So a line through the point इतने intersects this line at the right angle. Find the value of h. तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास लाइन क्या गिवन है? 7x minus 9y minus 19 equals to 0. So there is this line which passes through the point h, 3 and 4, 1, और ये लाइन इसको परपेंडिकुलर पे काट रही है। अगर ये लाइन इसको परपेंडिकुलर पे काट रही है तो इसकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। यस, सो पहले तो इस लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट में m निकाल दो। इस लाइन की स्लोप क्या होगा? 3 - 1/h-4, यानी कि 2/h-4 आ गया। ठीक बात। अच्छा, इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? 7x - 19 इक्वल्स टू 9y, 7/9x - 19/9 इक्वल्स टू y, सो यहाँ से स्लोप आ गई 7/9। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट, बिकॉज दे आर कटिंग एट राइट एंगल, सो दोनों का प्रोडक्ट हैज टू बी -1. सो कैन आई से 7/9 into 2/h-4 equals to -1. Can I say this? So 14/9h-36 equals to -1. So 14 is equal to 36 minus 9h, यानी कि 9h is equal to 36 minus 14. Yeah. So 9h is equal to 22. h की वैल्यू आ जाएगी 22/9, and that is your answer. Clear है?
मूविंग फर्दर. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतने टू दिस लाइन. चलिए, ये आपके पास लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0. ये है आपके पॉइंट्स -1, 3. आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के. लेट द पॉइंट्स बी h, k. अब देखो, दो चीज़ें होंगी. सबसे पहली चीज़ जो हमने ऊपर समझी थी, सिंस इट्स अ परपेंडिकुलर सो द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप हैज़ टू बी इक्वल टू -1. सो क्या मैं कह सकती हूँ k माइनस 3 अपॉन h माइनस 1. इट वॉज -1, 3, सॉरी. सो h प्लस 1 इंटू, अब इसकी स्लोप क्या हो जाएगी 3x माइनस 16 इक्वल्स टू 4y. सो 3/4 आ जाएगी इज इक्वल टू -1. होगा ये चीज़. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ 3k माइनस 9 अपॉन 4h प्लस 4 इक्वल्स टू -1, यानी कि 3k माइनस 9 इक्वल्स टू -4h माइनस 4. So can I say 3k plus 4h is equal to 5? क्या मेरे पास ये एक इक्वेशन आई? यस. अब दूसरी क्वेश्चन के लिए देखो, ये h, k जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? सो क्या मैं दूसरी इक्वेशन ये कह सकती हूँ कि 3h माइनस 4k इक्वल्स टू 16. इस लाइन के ऊपर भाई ये पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ना. अब देखो, सेम एलिमिनेशन मेथड. सो h का साथी 3 है, h का साथी 4 है, तो अगर मैं 4 को से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं कह सकती हूँ 12h माइनस 16k इक्वल्स टू 64. इधर से अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें इंटू 3 कर दूं, तो क्या मैं कह सकती हूँ 12h प्लस 9k इक्वल्स टू 15. अब एलिमिनेशन लगाए ऐसे. So I have minus 25k equals to 49. So k की वैल्यू क्या आ गई -49/25. या ट्रू. अब क्या करो, इसी वैल्यू को किसी भी h में डाल दो, चाहे इस इक्वेशन में h में डाल दो, तो आपके पास h की वैल्यू, इफ़ इन केस यू सॉल्व, यू विल गेट इट एज 68/25. तो आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 68, -25 -49/25, एंड दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. या आई होप इट इज क्लियर. चलिए नेक्स्ट. परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इतने मीट इट एट दिस पॉइंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ m and c. पहले फिगर देख लो. सो आई हैव एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसे जाएगी. अब ये जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से इस लाइन को मीट कर रहा है -1, 2 पे. आई नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ m and c. एक बात ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर है मतलब स्लोप का प्रोडक्ट -1. ये ओरिजिन से जा रही है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 2 - 0 अपॉन -1 - 0. बेसिकली इट विल बी -2. जब इस लाइन का स्लोप -2 है तो इस m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2. तो m की वैल्यू आ गई 1/2. m1 × m2 इज -1. अब ये पॉइंट इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा क्योंकि -1, 2 पे लाई कर रहा है. तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस c है ना. y की वैल्यू देखो 2 गिवन है, इज इक्वल टू -1/2 प्लस c, उधर ले जाओ 5/2 इक्वल्स टू c. तो m की वैल्यू आ गई 1/2 एंड c की वैल्यू आ गई 5/2. क्लियर है. चलिए, इन ट्राइंगल ABC द वर्टिसेस आर इतने. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेंथ एंड ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A. I'm so sorry for stretching this class for so long, but I think certain questions need to be done and you need the teacher's guidance for that. अपने आप से नहीं हो सकते हैं, है ना, इसीलिए आई एम टेकिंग इट अ लिटिल लॉन्गर ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं. चलिए, अब आपके पास ट्राइंगल है A 2,3, B 4,-1 and C 1,2. I need to find the equation and the length of the altitude from this point A.
मुझे इस ए डी की एक तो इक्वेशन निकालनी है, दूसरा लेंथ निकालनी है। मिड पॉइंट नहीं है ये ध्यान रखना कि मैं मिड पॉइंट से वैल्यू निकाल दूँ डी की और मैं निकाल नहीं। अब मेरी एक बात ध्यान से समझो, ये पॉइंट गिवन है बी एंड सी, तो बी सी की स्लोप कितनी आ जाएगी 2 + 1 upon 1 - 4 which will be 3 upon -3 which will be -1 होगी। अगर बी सी की स्लोप -1 है तो ए डी की स्लोप, क्योंकि ऑल्टीट्यूड है प्रोडक्ट -1 होता है, तो ए डी की स्लोप 1 आ जाएगी। सो स्लोप ऑफ ए डी इज 1। Now the line, equation of the line passing through a point 2, 3 and slope given है। So इस AD की इक्वेशन क्या आ जाएगी y - 3 = m of x - 2। So y - 3 = x - 2, y - x is equal to 1। ये मेरी इक्वेशन आ गई ऑल्टीट्यूड की। अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड। नाउ लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो इसके लिए मुझे BC की इक्वेशन चाहिए होगी, तो BC की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हाँ BC की इक्वेशन y - y1 is equal to -1 x - 4, so it will be y plus x equals to 3। देखिए ध्यान से, आपके पास ये BC की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। अब डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 2, 3 फ्रॉम दिस लाइन, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ax1 + by है ना, वो वाला होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 + 3 × 1 -3 upon root of 4 plus root of 1 + 1, yeah। So I have 2 upon √2 which is nothing but √2। तो डिस्टेंस आ गया आपके पास √2, या आई होप आई एम क्लियर। ठीक है ना, हमें लेंथ चाहिए पॉइंट की फ्रॉम द BC, तो BC की इक्वेशन तो हमें निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, चलिए ओके। लास्ट क्वेश्चन, if P is the length of the perpendicular from the origin to this line whose intercepts on the axis are A and B, I need to prove this। देखिए ध्यान से, P is the length of the origin 0, 0, इसकी लेंथ P गिवन है, टू दिस लाइन जिसके इंटरसेप्ट्स हैं AB, सो A, 0 एंड 0, B, या सो इसकी इक्वेशन बेसिकली x/a + y/b = 1, यानी कि bx + ay is equal to ab बनी। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन उसका P है, यानी कि P इज नथिंग बट, oops आई एम सो सॉरी, सो P is equal to b into 0, 0 plus a into 0, 0 minus ab upon √ of a square plus b square। आया, चलिए अब p की देखो वैल्यू आ गई मेरी, मॉड मैंने अगर हटा दिया ab अपॉन √ a² plus b square आया। अब मेरे को 1/p² प्रूफ करना है ना, सो 1/p क्या हो जाएगा एक तरीके से √ of a² plus b² अपॉन ab। I square both the sides, 1/p² equals to a² plus b² whole upon a² b², and I separate 1/p² equals to 1/a² plus 1/b²। और देखो ध्यान से, यही तो मुझे प्रूफ करना था, समझ आया? It's that easy। So I know I took longer than what I planned, but I suppose now the class is clear to you, the questions are clear to you. Try doing NCERT question, the third exercise of this chapter. And if in case you have any doubt, please put it in the comment section. If you are liking the videos, please do like, share and subscribe. We'll see you in the next video with the miscellaneous exercise questions. Bye-bye.